Good morning, students, and welcome to biology class. Today, we are going to discuss about the lesson number 1, that is the living world. And here, this is your syllabus or reduced syllabus for lesson number 1 or chapter 1, living world. Now, look at here, this is the portion non-evaluative for academic year 2020 and 21. And except the 1.1, remaining topics of this chapter will be reduced or non-evaluated. 1.1 except this is 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 means from 1.2 to 1.7 all topics are non-evaluative for academic year 2020 to 21 examination. Dear student, this is our first chapter, living world. And before going further, few questions are there for you. You have to recall. Now look at here, the first question. What is the difference between living and non-living things? Then dear student, the planet Earth is made up of the several things. These things can be categorized into two groups or two different types. First, that is living, and second, non-living things. Living things are those things that breathe, eat, grow, move, reproduce, and have senses. But the non-living things, they do not eat, do not grow, do not breathe, and do not move, reproduce, and they do not have any type of senses. Means here it is answer of this first question, the difference between living and नॉन लिविंग थिंग्स. आ रहा है समझ में कि हमारा जो प्लैनेट अर्थ है जहाँ पर हम रहते हैं, इसके ऊपर बहुत सारे थिंग्स हैं जिनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग. लिविंग थिंग्स वो होते हैं जो एक्चुअल में कुछ प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, मीन्स दैट कैन ब्रीथ, दैट कैन ईट, ग्रो, मूव, रिप्रोड्यूस एंड दे हैव सेंसेस. और जो इन प्रोसेसेस को परफॉर्म नहीं करते हैं, दैट आर नॉन लिविंग थिंग्स. यानी वो ना मूव करेंगे, ना ब्रीथ करेंगे, ना ईट करेंगे, और ना ही ग्रो करेंगे, और ना ही रिप्रोड्यूस करेंगे, और उनके कोई सेंसेस भी नहीं होंगे. नाउ द सेकंड क्वेश्चन, एनलिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होंगे? एक्सेप्ट दीज प्रोसेसेस दे शो, और although the non-living things may show some of these characteristics, but only the living things shows these or all of these characteristics. The first one, that is metabolism. It is nothing but the combination of catabolism and anabolism. Catabolism means breaking of molecules, and anabolism means making of new molecules. And next, the second property, that is homeostasis. Homeostasis means it is maintaining internal environment balance. Growth, it is also important property of living things. And next, that is reproduction. Reproduction is also
one of the important characteristic of living things. And except this, the next category, that is response or response to external environment and evolution. These are the characteristics which are performed by living organisms. Means this is the answer of second question. फर्स्ट क्वेश्चन हमने दोनों के बीच में डिफरेंस देखा, अभी हमने देखा एक्चुअल लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर्स क्या क्या हैं. तो इसमें है मेटाबॉलिज्म, इसमें होम्योस्टैसिस, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रेस्पॉन्स एंड इवोल्यूशन. नाउ द थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वेदर ऑल ऑर्गेनिजम्स आर सिमिलर, जस्टिफाई योर आंसर. हमको जस्टिफाई करना है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर सिमिलर. देन द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सिंपली नो, बिकॉज all organisms look similar to each other, but they don't look the same as each other. The all organisms, they look similar, they don't look same as each other. Each and every species adopted to their own environment after separating from the common ancestor, and so or because of this or because of their adaptation, they are of different types. डियर स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन था कि ऑल ऑर्गेनिज्म सिमिलर हैं, इसको जस्टिफाई करना है. देन द आंसर इज कि ये कभी भी सिमिलर नहीं हो सकते हैं. हाँ, कुछ ऑर्गेनिजम्स सिमिलर दिखते हैं, बट वो कंप्लीटली सेम नहीं है एक दूसरे के, क्योंकि वो सिर्फ इसलिए सिमिलर दिखते हैं कि उन्होंने सेम इन्वायरमेंट को, एक्चुअल सेम इन्वायरमेंट में वो रहते हैं, उस इन्वायरमेंट को उन्होंने अडॉप्ट किया है. जब भी ये कॉमन एंसेस्टर से सेपरेट हो जाते हैं, तो आफ्टर सेपरेशन जिस तरह का इन्वायरमेंट वो अडॉप्ट करते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या रहेंगे, कैरेक्टर्स रहेंगे. Got it, student? Dear student, look at here. Planet Earth is made up of abiotic and biotic components, means living and non-living things or components. The biotic components are obviously the living things present around us. Biotic components क्या है? Living things है, जो हमारे living beings है, जो हमारे सराउंड में, अराउंड में प्रेजेंट हैं. And the question is, why do we call them living and how do they differ from non-living? अब अगेन एक क्वेश्चन है कि हम उनको लिविंग ही क्यों कहते हैं और ये नॉन लिविंग से डिफर या डिफरेंट क्यों हैं. तो इसका कुछ पार्शियल आंसर हमने ऊपर डिस्कस किया है, आगे हम उसको डिस्कस करेंगे. नाउ लुक एट हियर 1.1. This is the only topic from this lesson, that is evaluative. मैंने पहले भी बताया आपको, except this topic, the 1.2 to 1.7 all are non-evaluative portion or topics. Basic principles of life. लाइफ के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, या लिविंग थिंग्स वो कौन से कैरेक्टर्स को परफॉर्म करते हैं जिस वजह से हम उनको लिविंग कहते हैं, एंड वो कैसे डिफरेंट है नॉन लिविंग से. नाउ फर्स्ट ए, द लिविंग बीइंग्स वंस प्रोड्यूस और बॉर्न हैज़ टू सर्वाइव. लिविंग बीइंग जैसे ही बॉर्न होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, वो सर्वाइव करते हैं. एंड फॉर सर्वाइवल इट नीड्स एनर्जी एंड मेनी केमिकल मॉलिक्यूल्स. और जो भी लिविंग बीइंग्स है
उनके सर्वाइवल के लिए उनको फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और कुछ केमिकल मॉलिक्यूल्स की. फॉर एनर्जी इट हैज़ टू परफॉर्म मेटाबॉलिज्म, और उस एनर्जी के लिए वो क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म करते हैं. हमने ऊपर डिस्कस किया है कैरेक्टर्स में. व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? लुक एट हियर. द मेटाबॉलिज्म इज breaking of molecules, means it is nothing but catabolism, and making of new molecules, that is anabolism. मेटाबॉलिज्म एक कलेक्टिव प्रॉपर्टी है जिसमें कैटाबॉलिज्म होगा, मीन्स ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, और एनाबॉलिज्म होगा, मीन्स मेकिंग ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स. दीज आर टू प्रोसेसेस कलेक्टिवली कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म. एंड द बी टॉपिक, फ्रॉम बर्थ ऑनवर्ड्स ऑर्गेनिज्म शो टेंडेंसी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अब जैसे उनका बर्थ हो गया और दे प्रोड्यूस हो गए, बॉर्न हो गए, उसके बाद से वो क्या करेंगे, ग्रोथ और डेवलपमेंट को शो करेंगे. मीन्स दे हैव टेंडेंसी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ मीन्स लाइकवाइज ऐसे इंक्रीज होना है. ग्रोथ यानी अगर हम हाइट लें ऑर्गेनिज्म की किसी भी या ह्यूमन की, तो इस तरह से वो क्या होता है, ऊपर ऐसे बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है आपकी, दैट इज ग्रोथ. डेवलपमेंट मतलब आप पतले से हेवी हो रहे हो, फैट हो रहे हो, दैट इज डेवलपमेंट. नाउ लुक एट हियर. द फ्रॉम बर्थ, sorry, the second basic property, that is, look at here. From birth onwards the organism shows टेंडेंसी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ यानी बढ़ना, मैंने जैसे आपको बताया आपकी हाइट इंक्रीज हो रही है, दैट इज ग्रोथ. आप अगर मोटे होते हैं, दैट इज डेवलपमेंट. इसी तरह से प्लांट्स एनिमल्स भी अच्छे से डेवलप हो जाते हैं. एंड द नेक्स्ट थिंग, दिस ग्रोथ इज अ वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोसेस. यानी ये जो प्रोसेस है ग्रोथ की, ये फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्केस्ट्रेटेड है, सिंक्रोनाइजेशन में है, एक रिदम में है. ऐसे नहीं कि ग्रोथ कैसी भी हो रही है. यानी एक्चुअल ग्रोथ पूरे ऑल ऑर्गेनिजम्स के ऑल बॉडी पार्ट्स में होगी. ऐसे नहीं कि कोई एक पार्ट अच्छे से डेवलप हो रहा है, हेड डेवलप हो रहा है या लेग्स डेवलप हो रहे हैं, लेग्स की ग्रोथ हो रही है, बॉडी की नहीं हो रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ऐसे नहीं होता है. मीन्स दे आर वेल ऑर्केस्ट्रेटेड. आप आपके ऊपर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आप जब भी ग्रोथ करते हैं तो आपकी टोटल बॉडी की ग्रोथ होगी. ईच एंड एवरी सेल इज शो ग्रोथ. नाउ यू माइट हैव ऑब्जर्व सैंड माउंट्स, बोल्डर्स ग्रो. आपने देखा होगा कभी कभी कि जो सैंड माउंट्स हैं, यानी जो सैंड के जो ये हैं ढेर, या उसके बोल्डर्स, पत्थर, छोटे छोटे कंकर, वो भी ग्रो करते हैं. बट ये ग्रोथ एक्चुअल लिविंग बीइंग की ग्रोथ से डिफरेंट रहेगी. दिस ग्रोथ इज नॉट फ्रॉम विद इन, हैंस आर नॉट लिविंग बीइंग्स. अगर हम सैंड माउंट्स को या बोल्डर्स को देखेंगे, रेत के ढेर को, पत्थरों को, कंकर को, तो वो भी ग्रोथ करते हैं, लेकिन उनका जो ग्रोथ है वो अंदर से नहीं होता है, वो सिर्फ ऊपर से रहेगा. बट लिविंग थिंग्स का कहाँ से रहेगा, फ्रॉम विद इन रहेगा. नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी और नेक्स्ट कैरेक्टर, दैट इज, look at here, C, growth. Growth and development are not the process which have unlimited time span. जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है, इसकी ये जो प्रोसेस है, इसका कोई अनलिमिटेड टाइम स्पैन नहीं है. यानी ये अनलिमिटेड नहीं होते हैं, टाइम स्पैन अनलिमिटेड नहीं है. एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, molecule, organs or organ system being to lose their effective working and become old. अगर हम ह्यूमन की एग्जाम्पल लें या एनिमल की एग्जाम्पल लें, तो उनकी जो ग्रोथ है वो अनलिमिटेड टाइम स्पैन तक नहीं है. एक सर्टेन पॉइंट के बाद उनके मॉलिक्यूल, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम क्या हो जाते हैं, उनकी इफेक्टिव वर्किंग को लूज करते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, और उस टाइम पर दे बिकेम ओल्ड, और वो ओल्ड हो जाएंगे, ह्यूमंस हो या एनिमल्स. एंड दिस इज एजिंग प्रोसेस ऑफ द
बॉडी, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एजिंग प्रोसेस। एक वक्त के बाद एक्चुअल सेम ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ रुक जाएगी और ऑर्गन और मॉलिक्यूल सिस्टम की इफेक्टिवनेस, जो वर्किंग की इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाएगी। इसको हम ओल्ड बोलेंगे एंड दिस इज कॉल्ड एजिंग प्रोसेस। नेक्स्ट वन, the life has to continue, hence the organism tries to produce young ones like itself. लाइफ कभी भी कंटिन्यू होती है और उस लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए, उसकी कंटिन्यूटी को कायम रखने के लिए ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? यंग वन प्रोड्यूस करते हैं। और यंग वंस कैसे? लाइक इटसेल्फ, यानी वो अपने जैसे, दे प्रोड्यूस यंग वंस लाइक देमसेल्व्स, यानी वो अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करेंगे। एंड इट इज पॉसिबल ड्यू टू द रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको पता है कि ये जो यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं वो, उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोलेंगे। और रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या है? दो टाइप की है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एंड एज यू नो, असेक्सुअल मीन्स वो मोड है जिसके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन और फ्यूजन नहीं होगा। एंड सेक्सुअल मोड में क्या होगा? गैमेट फॉर्म भी होंगे एंड फ्यूज भी होंगे। मीन्स असेक्सुअल में सिमिलरिटी 100% आएगी, दे आर आइडेंटिकल विद द पेरेंट्स, बट सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होगा? उनके अंदर डिफरेंसेस रहेंगे। दिस एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ रेस। और रिप्रोडक्शन को क्या है? रिप्रोडक्शन इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ रेस को, यानी उसकी कंटिन्यूटी को, किसी भी ऑर्गेनिज्म की। म्यूल्स स्टेराइल, वर्कर बी डू नॉट रिप्रोड्यूस। अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, यानी रिप्रोडक्शन को हम लाइफ प्रोसेस या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ नहीं बोल सकते, बेसिक प्रिंसिपल, क्योंकि इसमें जो म्यूल है, मीन्स ये वो एनिमल्स है जो एक्चुअल डोंकी और हॉर्स का एक्चुअल ये कॉम्बिनेशन से, हाइब्रिडाइजेशन से इनको प्रोड्यूस किया गया है। तो ये स्टेराइल होते हैं, यानी वो कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। लाइकवाइज द वर्कर बीज, मीन्स आपको पता होगा हनी बीज के 3 टाइप है। उसके अंदर जो क्वीन है और जो ड्रोन है और वर्कर है, तो उसमें जो वर्कर बीज है ये भी कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, बट और येट दे आर लिविंग, हम उनको भी लिविंग बोलेंगे। एक पर्टिकुलर कैटेगरी या एक पर्टिकुलर टाइप अगर ऐसा नहीं करती है रिप्रोडक्शन, तब भी वो लिविंग है। एंड कैन वी कॉल रिप्रोडक्शन एज इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर रिप्रोडक्शन जरूरी है या लिविंग थिंग रिप्रोडक्शन करते हैं, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन। नाउ लुक एट हियर द नेक्स्ट point, that is E. As the body loses its capacity to perform metabolism, the organism dies. और जब भी किसी ऑर्गेनिज्म की, लिविंग बीइंग की बॉडी मेटाबॉलिज्म करना बंद कर देती है, मेटाबॉलिज्म की कैपेसिटी उसकी ख़त्म हो जाती है, देन ऑर्गेनिज्म डाइज। हमने ऊपर देखा कि मेटाबॉलिज्म बहुत ज़रूरी है, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म की बॉडी या कोई ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म करना ख़त्म कर देगा, देन वो खुद भी ख़त्म हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, एफ, एनी लिविंग बीइंग रिस्पॉन्ड टू द थर्मल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिस्पॉन्ड करता है, थर्मल मीन्स चेंज इन द टेम्परेचर, केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस को। वो एक्चुअल रिस्पॉन्ड करेगा कि उसके सराउंड में कोई भी थर्मल, केमिकल या बायोलॉजिकल चेंज हो तो। एंड इन द सराउंडिंग, दिस इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स। और हम इस प्रॉपर्टी को, रिस्पॉन्ड वाली प्रॉपर्टी को, लिविंग बीइंग की यूनिक प्रॉपर्टी कह सकते हैं। अगर हम किसी भी एनिमल की एग्जाम्पल लें, आप कोई भी, या आप खुद की एग्जाम्पल ले लो, कोई एनिमल की ले लो, चाहे वो मॉस्किटो हो या हाउस फ्लाई हो या डॉग हो, अगर आप उसके तरफ कोई चीज़ थ्रो करते हैं या आप उसको ये इशारा करते हैं, मारने की कोशिश करेंगे, तो वो चला जाएगा। उसको वो रिस्पॉन्ड करता है, उसको नहीं मालूम कि आप उसको मारने आएंगे
या आप उसके दुश्मन हो, बट फिर भी वो भाग जाएगा। आपने बहुत बार ऐसे किया होगा या देखा होगा कि लिविंग बींग्स जो है वो सराउंडिंग से कनेक्टेड होते हैं, यानी वो रिस्पॉन्ड करते हैं, जो भी सराउंड में चेंज होगा वो उसको एक्चुअल उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करेंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग, लुक एट हियर, देयर आर इमेंस डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम ऑर्गेनिज्म को कंपेयर करें लिविंग बींग्स को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो उनके अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है। एंड सिंस टाइम इममेमोरियल वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ लिविंग टुगेदर ऑन अर्थ, और बहुत वक्त से, बहुत पुराने टाइम से वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म कहाँ हैं, दे आर लिविंग टुगेदर ऑन अर्थ, वो अर्थ पर एक साथ रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत अलग अलग डाइवर्सिटीज हैं। एंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, अब अगर हमको दोनों की इंटर रिलेशन समझना है, लिविंग और नॉन लिविंग की, देन एज वेल एज वी नो, एज वेल एज टू लिविंग बींग्स और ग्रुप्स, अगर हम ये जो डिफरेंट काइंड या टाइप ऑफ या डाइवर्सिटी वाले एनिमल्स है, अगर उनकी हमको इंटर रिलेशनशिप समझना है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की या दो लिविंग बींग्स के दरमियान की या उनके ग्रुप की, देन सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ दीज इज इसेंशियल। हमको क्या करना पड़ेगा, उनकी सिस्टमैटिक स्टडी करनी पड़ेगी। यानी कोई भी दो लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिलेशन, चाहे वो दो ग्रुप से बिलोंग करते हों या दो अलग अलग कैटेगरी से, तो उनका हमको डिफरेंस बहुत समझने के लिए हमको सिस्टमैटिक स्टडी उनकी करनी पड़ेगी, और अगर वो लिविंग बीइंग या नॉन लिविंग हो तब भी। एंड दिस डेटा इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। अब ये जो हमको सिस्टमेटिक स्टडी का जो डेटा है, ये एक्चुअल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत सारे इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर के लिए भी। इंटेंसिवली laboratory and field studies in order to identify and classify the organism from form strong basis for meaningful use of the collected data। अब बहुत सारे जो लेबोरेटरीज है, फील्ड स्टडी है, ये आइडेंटिफाई और क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, और उनके ऑर्गेनिज्म के फॉर्म्स को उनके स्ट्रॉन्ग और मीनिंगफुल बेसिस की वजह से या यूज़ की वजह से। और इससे हमको क्या मिलेगा, जो भी डेटा मिलेगा कलेक्टिव, ओके, तीस डेटा यानी उनका आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन अगर होता है, तो इससे हमको एक मीनिंगफुल डेटा मिलेगा जो एक्चुअल हमारे लिए यूज़फुल रहेगा। इफ़ वी नीड टू स्टडी this diversity, certain aids called taxonomical aids can be used। और इस स्टडी के लिए बहुत सारे एड्स कलेक्ट किए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट की जाती हैं। ये एक्चुअल टैक्सोनॉमिकल एड्स रहते हैं जिनका यूज़ करके एनिमल को आइडेंटिफाई और क्लासीफाई किया जाता है। एंड दीज इंक्लूड्स हर्बेरिया, botanical gardens, museums and biodiversity parks etc। यानी ये जो टैक्सोनॉमिकल एड्स है, टैक्सोनॉमिकल एड्स के अंदर क्या इंक्लूड है, हर्बेरिया यानी हर्बेरियम बनाना, शीट्स बनाना, बोटेनिकल गार्डन्स, प्लांट के लिए बहुत सारे बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं, एनिमल्स के लिए म्यूज़ियम या ज़ू होते हैं, म्यूज़ियम में बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल के क्या रहेंगे, डिफरेंट स्पेसीज रहेंगे, एंड biodiversity parks etc। These are the taxonomical aids that is used to identify and classify the organisms, and from these we can collect a meaningful data, or we can produce a meaningful data that is useful for us for the systematic study of the different living organisms and the difference between the living and non-living things, or the living beings or their among their groups। Got it student? यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, एंड एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आपको ये क्वेश्चन के आंसर फाइंड करने हैं। हम इन क्वेश्चंस को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। Got it student?
Look at here, the first question, how can we study large number of organism at a glance? मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं कि बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स को एक ग्लेंस में, एक शॉट में हम उनको कैसे स्टडी करेंगे, यानी वो कौन सी ट्रिक या टेक्निक हमको चाहिए जिसके थ्रू हम लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदर ऑल ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड? क्या जितने भी लिविंग बीइंग्स है सब के सब फूड प्रोड्यूस करते हैं? And the third question is, which feature can be considered as all inclusive characteristic of life and why? वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या कौन सा फीचर है जो कंसिडर किया जा सकता है कि ऑल इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ एंड वाई? गॉट इट स्टूडेंट? ये 3 क्वेश्चन के आंसर आपको फाइंड करना है एंड इसके आंसर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू and have a nice day.